एक कंपनी होती थी लुई फिलिप, और उसमें नीचे लुई फिलिप कहीं से इंडियन नाम लग रहा है ये, एलन सॉली फ्रॉम नॉटिंगम लिखा होता था नीचे, फ्रॉम नॉटिंगम, और बनती है गुजरात में ही थी, राइट, बट लिखा होता था फ्रॉम नॉटिंगम. इंडियंस नेवर यूज्ड टू लाइक इंडियन ब्रांड्स. देयर वाज अ टाइम व्हेन वी स्टार्टेड, हम लोगों को भी होता था कि फिरंगी ब्रांड लोगों को पसंद आते थे कि ये बाहर का नाम लिखा है, बट हमने जब स्टार्ट किया 2016 में तो इंडियन ब्रांड्स का नाम नहीं होता था. आई यूज्ड टू, when I started, there were 70% of the brands were, no, not 70, 90% of the brands were foreign brands. And today in 2025, in my industry, wearables, 70 to 75% of the brands are Indian brands. So I'm proud that now the Indians started buying Indian brands. Then came COVID 2021 के आसपास, तब हमारा ना मेक इन इंडिया का मोदी जी ने स्टार्ट किया था, मेक इन इंडिया का प्रोग्राम, राइट. There was earlier we were a brand born in India, and then products इंडिया में कौन क्या बिकता था आपको याद है? एक कॉन्फ्रेंस करी थी मोदी जी ने, उसमें उन्होंने बोला था पीपी किट्स भी नहीं बन रही इंडिया में, पता है, पीपी किट्स नहीं बनती थी इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं होती थी. So I think hats off to the Indian government and the electronic ministry, startup ministry, Piyush Goyal sir's Department of Commerce. I think the government has done a fantastic job in helping startups, in helping the industry make in India. They created the PLI scheme, they created the PMP scheme, they created ease of entry. I think ये सब नहीं होता ना तो हम लोग भी कभी स्टार्ट नहीं करते. तो 2021 में हमने इंडिया मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करी, और आज 2025 में from 0% made in India, now 65% plus products are now made in India for us. Wow. And are there any schemes or जो government में across the country, they've started a lot of schemes, grants, incubation programs. Any specific thing that you want to highlight that the youth should probably take on and make use of? I think I remember a time when I was starting, like हम लोगों को ना डर लगता था ब्यूरोक्रेट से, हम लोगों को डर लगता था गवर्नमेंट से, राइट. आज की डेट में द गवर्नमेंट इज वेरी अप्रोचेबल, राइट. पीपल लाइक अस कैन गो टू द ब्यूरोक्रेट्स, पीपल लाइक अस कैन गो टू द गवर्नमेंट एंड रिक्वेस्ट फॉर हेल्प वी नीड, राइट. देयर इज नेवर बीन अ टाइम, मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं अभी अमित सर को भी बता रहा था कि आप देखो कि स्टार्टअप्स फेस्टिवल नहीं होते थे यार, नहीं होते थे, अब हो रहे हैं. Why? Because the government also wants to encourage startups, right? Not only that, in this world, there is no country which celebrates Startup Day. India celebrates a Startup Day, right? There are shows which have come up. हमारा भी जैसे show है, we've also played a very small role in Shark Tank has also played a very small role in that. But there is a startup revolution happening in the country where people are now starting, and that started with the government pushing startups, right? I'll tell you about my story. मैं ना फ्रांस गया, ठीक है, लास्ट ईयर. तो मैं मोदी जी के साथ फ्रांस गया, और मेरे को ना पहले तो यकीन नहीं हुआ कि मुझे बुलाएंगे, क्योंकि अगर आप देखो नॉर्मली जब जाते हैं वहाँ पे तो वो देर आर you can count in your fingers those 10 people, 10 names which will normally go, right? But then I loved it that now he's encouraging startups. मैं भी गया वहाँ पे, मेरी 6 साल पुरानी कंपनी है और मैं वहाँ गया, and that shows that the government is promoting startups. Now there are so many startups which go with Modi ji. So I think it's the best time to start up. There is good policy, there is good governance, there is good support from the government. And not only at the national level, even at the smaller level, even at the MLA level, even at the MP level. So guys, it's, I think the government is very pro startups. And I think one thing which Modi ji says is, startups will play a very important role in the Viksit Bharat. So yes, we all should play our small roles in Viksit Bharat as startups. Right, very correct. And there's nothing really holding anyone back. No excuses really if you want to take that entrepreneurial leap. Aman, now talking about Boat and building Boat as a brand really and becoming a market leader, tell us about, one is make in India, but also designing in India, and what makes an Indian brand attractive. Because you entered a space which has a lot of competitions from, say, the JBLs and the Sonys, the international players as well. What does it take to cater to the Indian ear and the Indian market? So Indian ना जैसे मैं पहले बता रहा था ना, मैं actually ये कहता हूँ कि
इंडियन ब्रांड्स की अब टाइम आ गया है, राइट? पहले पहले हम लोगों की ना सोच छोटी होती थी. जैसे अगर आप पूछो, स्टारबक्स का नाम सुना है ना आप लोगों ने? स्टारबक्स क्या है? चाय की दुकान, कॉफी की दुकान ही तो है, राइट? मैकडोनल्ड्स क्या है? जैसे वो कहते हैं ना, बजाज जी ने बोला था, ये वड़ा पाव की दुकान, राइट? वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट क्या है? वॉलमार्ट इज जस्ट अ बनिए की दुकान, राइट? उनका और हमारे में डिफरेंस क्या था पता है? दे वर यूज टू थिंक बियॉन्ड, दे यूज टू थिंक ब्रॉड. उनका एक बनिए की दुकान थी जिससे वो आज वर्ल्ड में बनियों की दुकान खोली हुई है, राइट? मैं यही कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे इतनी दुकानें हैं, इतनी चीजें हैं, हमारी सोच बदल रही है. हमारी सोच बदल रही है कि अब हम बड़ा सोचते हैं. अब हम सोचते हैं कि हम इंडियन ब्रांड्स वर्ल्ड को क्यों नहीं डोमिनेट कर सकते. तो वो नई पीढ़ी है. अगर आप देखो फ्रॉम एवरी स्टेप, राइट? इफ यू सी आर क्रिकेट, इफ यू सी क्रिकेट, पहले हमारा टाइम होता था जब डर जाते थे इंडियन क्रिकेटर्स, राइट? कि कोई हमारे को स्लेजिंग करता था, हम ऐसे चुपचाप बैठ जाते थे. अब टाइम आया है कि विराट कोहली खुद जाके स्लेजिंग करता है ऑस्ट्रेलियंस को. नया ऑस्ट्रेलियन आता है, उसको पहले उसको स्लेज करके आता है, राइट? सेम सेम चीज मैं आपको बताता हूँ. अगर आप देखो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी, राइट? आप उनको देखो, वो पहले डिफेंसिव नहीं होते हैं. अब वो इंडिया इज नाउ लव्ड बाय ऑल कंट्रीज इन द वर्ल्ड, वेदर इज रशिया, वेदर इज यूक्रेन. Everybody loves India because he doesn't think and portray or market or makes India feel inferior, right? Same way as brands, we also feel our time has come. We can build global brands from India, and we will. That's what the new India is thinking. Great thought there, Aman. Now, you've always, of course, focused on quality of the product. लेकिन आपने quality को भी रख के, you have focused on making it affordable. So tell us about, what is the marketing strategy there or the product strategy there, and what are some of the key decisions जिसमें you cut out all the noise, चाहे वो funding के हो या product के हो, which really let you stay the course in building boat. इट्स अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. इंडिया में ना, आपको पता है आप लोगों से पूछता हूँ मैं, ओपन क्वेश्चन, सबसे सस्ती गाड़ी कौन सी थी इंडिया में? नैनो. क्या हुआ उसका? बंद हो गई. क्यों? क्योंकि वो सबसे सस्ती थी. इंडिया में सस्ती चीजें नहीं बिकती. इंडिया में प्राइस से नहीं बिकता. इंडिया इज वेरी एस्पिरेशनल. मैं हमेशा कहता हूँ कि जो गांव में बंदा है ना, वो ये देखता है कि टाउन में क्या बिक रहा है. टाउन में जो बंदा है वो ये देखता है सिटी में क्या बिक रहा है. सिटी वाला देखता है मेट्रो में क्या बिक रहा है. सो इंडिया इज वेरी एस्पिरेशनल. इंडिया को कोई भी चीज आप सस्ती नहीं बेच सकते. सो हम लोगों ने भी अपनी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी ऐसी ही बनाई, मैम. वी वांटेड टू गेट इट राइट. वी वांटेड टू गिव अच्छे प्राइस पे दो, अच्छी क्वालिटी दो, तो इंडिया खरीदता है. टुडे आई एम प्राउड टू से फॉर लास्ट मे बी more than 10 quarters, we've been number one audio brand in the country. Thank you, thank you. And as you rightly said, we are now second largest audio brand in the world. First is Apple, second is Boat. And we don't need to set outside India. लोग कहते हैं कि आपको इंडिया के बाहर बेचना चाहिए. हमारी पॉपुलेशन पता कितनी है? हम इंडिया में ही बेच के नंबर 2 बन गए. अभी तो हम बाहर गए नहीं है, राइट? This is So, Boat. and what is your sense of, social media branding? क्योंकि आपने influencer marketing, social media को काफी सही तरीके से use किया है. You've got a whole slew of brand ambassadors. Do you think that is the right way to go really? Because you also built this community, boathead community. और हम चाहते हैं कि जब product launch होता है तो line लग जाए, जैसे Apple के shop के बाहर, since 4 o'clock people are waiting. So मेरा व्यू ये होता है, इंडिया ना, इंडिया इज नॉट मेड फॉर वन सॉर्ट ऑफ पीपल, राइट? आई एम हियर टॉकिंग टू यू. यू विल हैव थिंग्स विच यू विल लाइक विच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई विल लाइक. सेम वे, आई माइट लाइक समथिंग, ही माइट लाइक समथिंग एल्स, राइट? इंडिया में एक चीज किसी को पसंद नहीं है, राइट? आप इंडिया को डिवाइड कर सकते हो एज लाइक अ कॉन्टिनेंट वेयर when I was starting my marketing strategy, right, as you were saying, some people liked cricket, some people liked Bollywood, some people liked regional movies, some people liked hip hop stars.
तो आपको ना मेरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप कह रहे हो ना, बहुत सारे स्टार रखे, बहुत सारे ब्रांड मैनेजर हमने इसलिए रखे क्योंकि एक को रख के कुछ नहीं हो सकता, आपको अलग अलग बंदों को अलग अलग जगह पहुंचनी चाहिए। और तो मार्केट ना बड़ी जल्दी मूव करती है। मैं आपको सिंपल बताता हूँ, पहले हम लोग सब फेसबुक में होते थे, राइट? फिर धीरे धीरे सब इंस्टाग्राम पे गए, आजकल सब स्नैपचैट पे जा रहे हैं, सारे बच्चे स्नैपचैट पे जा रहे हैं। और अगर हम लोग एज ब्रांड्स नई चीज़ों को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग खत्म हो जाएंगे। वी विल ऑल्सो हैव टू अडेप्ट। सो माई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इज वेरी सिंपल। नो योर कंज्यूमर। आपका कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर को जो चाहिए उसको दो। आपको पता है पुराने जमाने में ना एक लाइन होती थी, ग्राहक भगवान है। आपने सुना है वो लाइन, ग्राहक भगवान है? वो बात ना कहीं बांध लो, कहीं लिख लो, ग्राहक भगवान है। कि अगर कंज्यूमर को जो चाहिए आप उसको दोगे ना, उसको भगवान समझो और उससे बैकवर्ड चलो। जो उसको चाहिए उसको दो एंड कंज्यूमर्स विल बी हैप्पी, you will be happy, your brand will be happy. और फेलियर, Then open the floor for questions after this. Sorry? Let's open the floor for ओपन द questions. फ्लो, हाँ। और एक लास्ट क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ जो मतलब फेलियर एक इंटीग्रल चीज होती है यू नो इन स्टार्टअप, सो व्हाट हैज बीन योर बिगेस्ट लर्निंग एंड पिवटल पॉइंट इन स्टार्टिंग अप? I always say failure से मत डरो, एक बारी फेल होके देखो, बहुत मजा आता है, राइट? पहली बार फेल होते हो तो बुरा लगता है, लेकिन आप 2-3 बार फेल होते हो तो आदत पड़ जाती है, राइट? और फेलियर से मेरे 5 फेलियर हुए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ 5 फेलियर हुए। किसी को मेरी फेलियर के बारे में पता है? नहीं पता। सक्सेस के बारे में पता है। बोट मेरा अकेला सक्सेस हुआ है। तो फेलियर से डरो मत। 5 क्या, मेरे अगर 10 फेलियर भी होते तो मैं भी लगा रहता। एक फेलियर, एक सक्सेस चाहिए। 10 फेलियर हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सक्सेस मिलेगा, लगे रहो। One last question before I open up the floor to the audience. If we can get a mic to the audience as well, or they can come up here and take the mic from me. Aman, your journey on Shark Tank, how, you know, do you focus more on the founder, on the startup? What is it that you give more attention to, and how do you go about I doing it? think people know me, you know, when I was starting up, then a lot of people, you know, did not fund me, right? And I used to say कि यार क्यों नहीं कर रहे, मैं अच्छी कंपनी बनाना की कोशिश कर रहा था, हम लोग भी तो ट्राई कर रहे थे. People didn't know us, right? But there was this one guy who invested in us. His was Kawaljeet Fireside, you know him. So Fireside invested in us. They invested 6 crores in our company in the first round. And I've already returned 6 करोड़ के मैं 100 करोड़ उन्हें वापस कर चुका हूँ, और उनका अभी भी 3% है हमारी कंपनी में. फर्क पता क्या है? उन्होंने एक बंदे पे बैठ ली थी, मेरे और समीर पे बैठ ली थी कि ये लोग कुछ करेंगे. तो मैं शार्क टैंक पे आता हूँ ना, मैं बंदे को देखता हूँ. मेरा बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि मैं बंदा चूज करूँ. अगर वो बंदा सही है ना, तो वो कहीं ना कुछ करके फोड़ेगा और वो कुछ पैसे बना के देगा. सो आई बेट ऑन द फाउंडर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. 90% ऑफ माई डिसीजन इज फाउंडर लेड. Great. Any questions from the audience? Yeah, just give the mic. Do we have any extra? और यहाँ पे JBL के स्पीकर लगे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा. इनके ऊपर स्टिकर चिपका देते हैं बोर्ड का, नहीं? हेलो सर, हाय. माय नेम सन्नी पारेख. मेरा सेम स्टोरी मैं आपसे ही इंस्पायर होकर कर रहा हूँ. मैं इटली की कंपनी में वर्क कर रहा था. अभी मैं खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ. तो मेरा एक्चुअली में मेटल टेस्टिंग के मशीन्स का है, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है. बाहर से अभी जो आ रहा है वो इंपोर्ट जो आ रहा है वो 50-60 लाख के मशीन आते हैं. तो मैं यहाँ पे अभी खुद का स्टार्ट कर रहा हूँ. मैं अभी स्टार्ट में अभी चाइना से ला रहा हूँ. तो वो समथिंग कुछ मुझे 15 लाख में पड़ रहा है और 20 लाख में सेल हो रहा है. तो मैं इंडिया में सर कैसे करूँ, जैसे आपने किया था ऐसे मैं कैसे ग्रो करूँ, मुझे उसके लिए थोड़ा गाइडलाइन चाहिए था सर. तो सही है, जहाँ पे सस्ता भी चाइना में बन रहा होगा, राइट? राइट. बट अगर आप स्केल ले आओगे तो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इज मच चीपर नाउ. इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, देयर आर लॉट ऑफ, एज आई वाज टॉकिंग अबाउट PMP PLI स्कीम्स. कम, यू नो, टॉक टू द गवर्नमेंट. अभी पीयूष जी से बात करना, उनकी टीम से बात करो. बहुत सपोर्ट मिलता है कि आप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करो. और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना इज अ मिशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. इफ यू सी, अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट कीप्स टॉकिंग अबाउट दैट. सो यू शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया. बट आई थिंक जब तक वो स्केल नहीं आता बड़ा टफ हो जाता है. बट जब वो स्केल की वेट करो, आई थिंक वो स्केल कभी ना कभी आएगा. या हाय अमन. अभी पीछे भी माइक दे देना मैम, ठीक है? Yes, ये सारे after आगे this वाले it's- पूछ रहे हैं, ये okay. स्पॉन्सर है क्या? नहीं.
Not yet. I've asked the same question to Mr. Vijay as well, the Paytm founder. तो उसका आंसर अच्छा नहीं लगा तेरे को? नहीं, it's a different question related to that segment. So I have a very different perspective here. Everybody is talking about startups. So you have asked, like, are you the sponsor? Yes, we are the sponsor of MSMEs. So we are trying to empower all the MSMEs of India, as Indian government is also doing the same. So I have a question here कि अभी startup funding की बात चल रही है. So government MSME funding के लिए बहुत support करती है. They have a very good support towards MSME funding. So I want to understand from your end कि private investment MSMEs के लिए, उसके लिए आपका क्या point of view है कि private investors कब आएंगे MSMEs में invest करने के लिए? Not only for startups but yes for the MSMEs as well. Because SME IPO तो अब आ ही रहा है, but a lot of people are not aware. So this is what we are trying to do. ठीक है, इससे माइक ले लो मैम. स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट ना आज की डेट में एमएसएमई इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट, लेट स्टेज इन्वेस्टमेंट इज एंड अ बूम, राइट? देखो पता है एक टाइम होता था जब इंडिया के जो बिजनेस हाउसेज है ना बड़े, वो कोई भी स्टार्टअप्स में फंड नहीं करता था, ठीक है? अभी एक टाइम आ गया है कि इन्होंने देख लिया है, सारे इंडस्ट्रियल हाउसेज ने देखा है कि बहुत पैसा बनता है स्टार्टअप एमएसएमईज में इन्वेस्ट करके. अभी तेरे को पता है मैं कितने लोगों से मिलता हूँ, कितने इंडस्ट्रियल हाउसेज, कितनी बड़ी कंपनी से मिलता हूँ जो कहते हैं यार हमारे भी पैसे लगवा दियो स्टार्टअप्स में. वो टाइम चेंज हो गया है. नाउ दे हैव आल्सो रियलाइज दैट दे कैन मेक एफडी प्राइवेट इक्विटी में डाल के, एफडी या फिर पब्लिक इक्विटी में डालने से ज़्यादा प्राइवेट इक्विटी में भी पैसा बनता है. So there is lot of money if you are doing the right business. If your business is good, money is not a problem. पहले एक टाइम होता था कि पैसे की प्रॉब्लम होती थी. अब अगर बिजनेस अच्छा है, बिजनेस तेरे हिसाब से नहीं, अगर एक्चुअली में अच्छा है, क्योंकि हर एक बंदा जो स्टार्ट करता है उसको लगता है उसका बिजनेस तो बेस्ट है. अगर बिजनेस में दम है, अगर बिजनेस कस्टमर खरीद रहा है तेरे प्रोडक्ट, अगर तेरे बिजनेस में रेवेन्यू हो रहा है, और आजकल प्रॉफिट भी बहुत जरूरी है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इन्वेस्टर लाइन लगा के तेरे पीछे भागेंगे. बट सही बिजनेस, सही धंधा, राइट, आई वुड से राइट फंडामेंटल्स, राइट आरओआई एंड गुड गवर्नेंस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर अच्छा गवर्नेंस होगा, पैसे लाइन लगा के तेरे पीछे भागेंगे. सर एक स्टार्टअप के फाउंडर की एक टॉप मोस्ट स्किल सेट क्या होगी? टॉप मोस्ट इनसाइट, स्किल सेट, टैलेंट होना चाहिए उसके अंदर. पागलपन होना चाहिए, पागलपन, नशा उसको. क्योंकि जब वो काम करने जाएगा ना तो उसको बहुत लोग मना करेंगे. जैसे मेरे बिजनेस में भी, आपको क्या लग रहा है, ये जर्नलिस्ट लोग पहले हमारे को भाव भी नहीं देते था कोई जर्नलिस्ट. कहते थे कौन है तू, क्या कर लेगा, राइट? इन्वेस्टर्स भाव नहीं देते, जर्नलिस्ट भाव नहीं देते, ठीक है? आपकी फैमिली भाव नहीं देती. फैमिली वालों ने डिस्काउंट करना शुरू कर दिया था. मेरे 5 फेल हुए ना तो फैमिली वालों ने बोला अबे निकम्मा बेटा पैदा करा है, ठीक है? तो कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई सपोर्ट नहीं करता. तो आपके अंदर एक ऐसा पागलपन होना चाहिए कि आपको लगता है आप कर लोगे, जो कोई नहीं कर सकता ना वो आप कर लोगे. वो पागलपन अगर होगा, वो नशा होगा, तो काम हो जाएगा. मेरे अंदर वो था. मैंने बोला, मैं जब कंपनी में जाता था मैं छोड़ देता था. मैं बोला मुझे नहीं करना, मैं किसी के यहाँ काम ही नहीं कर सकता था. मैं बता रहा हूँ ना, मैं JBL गया. वो JBL का फुल फॉर्म होता था JB लैंसिंग. वो एक बंदे ने शुरू की थी, तो मैं उसके यहाँ काम कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, और मुझे लग रहा है साला इसने भी तो शुरू करी थी किसी एक बंदे ने, और मैं उसके लिए काम कर रहा हूँ. फिर मैं क्या सिटी बैंक की बात करता हूँ, सिटी बैंक गया, मेरे को वहाँ भी लगता था साला सिटी बैंक भी तो एक आदमी ने शुरू किया था, मैं क्यों नहीं कर सकता. फिर मैं KPMG गया, वहाँ भी मुझे ये लगा. तो मेरे अंदर वो था कि मैं किसी और के लिए नहीं करूँगा, मैं अपने लिए काम करूँगा और मैं अच्छा काम करूँगा, और मैंने किया. तो वो पागलपन, वो नशा, वो चाहिए. जब वो रिपोर्टर, जब वो नहीं आते थे ना, आज वो आएंगे. देखो पता है, मेरी फैमिली मेंबर जो मेरे को पहले मेरे से बात नहीं करते थे, आजकल मेरे सबसे बड़े फैन वही है. अरे हमारा बेटा, हमारा बेटा. पहले वही लोग इग्नोर करते थे, राइट? तो बहुत चेंज हो जाती है लाइफ. तो चेंज होती है जब तू अपने नशे पे जाता है. और जब मजा पता है किस चीज का आता है, ठीक है, अच्छी आ रही. मजा पता है किस चीज का आता है? मजा आता है जब लोग मना करें ना, उसको जब तुम करके दिखाओ, इतना मजा आता है ना, मैं बता नहीं सकता. मेरे को तो इतना अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि
अरे यार इतना तो कर लिया, इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद नहीं हो पाएगा। और उसको जब करके मैं उनके पास जाके ऐसे करके हंसता हूँ ना, हो गया। तो वो पागलपन, वो नशा, वो होना चाहिए तेरे अंदर कि मैं तो कर दूंगा। Hi, Aman sir. My name is Pankit Bhalotia. So, हेलो। So अबे wha- फिर यही पीछे दो, मैडम आप पीछे प्लीज माइक दो यार। बहुत ये लो। सारे बहुत सारे पेरेंट्स का परसेप्शन ये होता है कि आप पहले एमबीए कर लो फिर बिजनेस करना, क्योंकि आपके पास सिक्योरिटी रहेगी कि आपका बिजनेस नहीं चला तो आप एमबीए करके जॉब कर सकते हो। तो इसमें आपका क्या व्यू है? मत सुन ज्यादा अपने पेरेंट्स की बात। जो तेरे पेरेंट्स आसपास तो नहीं है? ठीक है, वरना मुझे बहुत मारेंगे। लेकिन देख यार, पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको मैं भी फादर हूँ, राइट? और मतलब मैं आजकल की जनरेशन, जैसे तुम लोग हो, तेरी एज क्या है? 19। तो 19 इयर्स के जो बच्चे हैं यार, बच्चे भी नहीं बोलना चाहिए ना, फिर तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना, यंग एडल्ट्स। तो आजकल यार, तो मेरे को नहीं लगता मेरे मतलब आजकल की जनरेशन अपने पेरेंट्स की ज़्यादा सुनती है। मतलब मैं था जो मैं सुन लेता था अपने माँ बाप की, मैंने सुन ली थी। लेकिन अब आजकल ज़्यादा सुनते नहीं है। और पेरेंट्स का क्या होता है ना, एक प्यार होता है जो कभी नहीं जाता बच्चों से। तो अगर तू थोड़ा वो करेगा, क्या बोलते हैं, नहीं करना मुझे एमबीए नहीं करना, तो नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाई मतलब तो अपना बिजनेस शुरू कर। पर ऐसा मत करियो कि देख क्या होता है ना, बहुत बच्चे आजकल मिलते हैं जो पढ़ाई करना नहीं चाहते और बिजनेस करना चाहते हैं जस्ट बिकॉज उनको पढ़ाई करने का मन नहीं है। अगर बिजनेस अच्छा नहीं है, पढ़ाई भी नहीं करी, तो आगे जाके बड़ी प्रॉब्लम होगी भाई। तो अगर तेरे बिजनेस में दम नहीं है तो प्लीज़ पढ़ाई कर ले। अगर बिजनेस आइडिया अच्छा है तो बिजनेस कर ले। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट चीज़ करना। बिकॉज आज तूने बिजनेस छोड़ दिया, आज तूने पढ़ाई छोड़ दी, तो देखो नौकरी भी नहीं लगेगी। तो मैंने अपने मेरे को ये लगता है कि मेरे को जब मेरे पेरेंट्स ने पुश किया कि तू सीए कर ले, तो मैंने सीए करी ना, तो लाइफ लॉन्ग के लिए ना औकात होती है एक। जब तुम सीए कर लेते हो, जब कोई अच्छा कोर्स कर लेते हो, एमबीए कर लेते हो, तो आप चौड़ में बोलते हो कि मैं सीए हूँ, राइट? कोई आपको जज नहीं करता, उससे नौकरी का भी टेंशन नहीं होती। तो मैं इतने रिस्क इसलिए ले पाया कि मुझे पता है मेरी पढ़ाई हुई भी है। जब पढ़ाई हुई भी होती है ना, तो नौकरी का स्ट्रेस नहीं होता। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं हुई, बिजनेस नहीं चला, तो डिप्रेशन हो जाती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रख के करियो। बट अच्छा बिजनेस आइडिया है तो प्लीज़ फॉलो कर, और बहुत अच्छा आइडिया है तो मेरे से पैसे ले लियो, मेरे भी पैसे बना दियो, ठीक है? हेलो हेलो कहाँ से बोल रहे हैं मिस्टर इंडिया? हेलो हेलो। सर, सीए संयम शायर। एंड मेरे को एक क्वेश्चन था कि बहुत सारा हमको क्वेश्चंस आते हैं कि कौन सा, जैसे 2-3 बिजनेस सेगमेंट हमने आइडेंटिफाई किए, और बेसिकली क्या होता है कि कौन से बिजनेस में जाए वो फाइनल नहीं कर पाते हैं कि ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। थोड़ा बहुत रिसर्च करते हैं, बाद में स्विच कर लेते हैं। तो वो कैसे एक्चुअली फिगर आउट कर पाए? यार वो ना घुस के ही पता लगता है। आप जब तक किसी बिजनेस में घुसोगे नहीं ना, तो आपको कुछ ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। क्योंकि जो पढ़ा लिखी चीज़ें होती है ना, वो एक नॉर्म्स होते हैं। जैसे मैं केस स्टडीज़ होती है, मैं केस स्टडीज़ कभी नहीं पढ़ता था। क्योंकि देखो, अगर आप देखो, 1-2 केस स्टडीज़ होती थी हार्वर्ड में, साउथ वेस्ट करके कंपनी है, उसकी केस स्टडी होती थी। अब सबको पता है साउथ वेस्ट कैसे चलती है, बट लोग इंडिया में साउथ वेस्ट जैसे कंपनी तो नहीं चला पाए ना। इंडिगो है जैसे एयरलाइंस, अब इंडिगो एयरलाइंस है, सबको पता है वो प्रॉफिटेबली अच्छे से चलाती है। लेकिन कितनी कम एयरलाइंस आई, बंद हो गई। जेट एयरवेज, सहारा, किंगफिशर, डेक्कन, सब बंद हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि वो उसकी तरह नहीं चला पाई। सो आप जब बिजनेस में घुसते नहीं हो ना, तब तक आपको पता नहीं लगता उस बिजनेस के प्रॉब्लम्स क्या है, एग्जीक्यूशन इश्यूज क्या है, चैलेंजेस क्या है। सो आई थिंक हर बिजनेस को ना ट्राई करके ही पता लगता है मेरे हिसाब से। बाहर से कोई भी बोलेगा, जैसे अगर बाहर से कोई बोलता तो आज ये बोलता कि जैसे 2 साल पहले बाईजूस करके कंपनी थी, अभी भी है नहीं पता नहीं, तो तब सब बोल रहे थे बाईजूस बहुत अच्छी कंपनी है। कहाँ है बाईजूस? कहाँ है? बंद होगी। करेक्ट। स्नैपडील, कौन करता है शॉपिंग स्नैपडील से? कोई करता है? तो मैं कह रहा हूँ बिजनेस ना बहुत अलग चीज है। एग्जीक्यूशन इज वेरी क्रिटिकल। आपको एग्जीक्यूशन पे ध्यान लगाना जरूरी है, बट बिजनेस में घुस के ही पता लगता है उस बिजनेस के प्रॉब्लम्स क्या है। सर,
मेरा एडिशनल क्वेश्चन उन्हीं को लेके है, जैसे आपने बोला कि बिजनेस में अंदर घुसने के बाद पता चलता है कि एग्जिट कब लेना, बट मेरा बस एक ही क्वेश्चन है कि वो एग्जिट पॉइंट कौन सा है, कि जैसे अब बिजनेस नहीं चल रहा और वहां से हमने एग्जिट ले लिया, क्योंकि फिर फॉल्स, अगर हमारा बिजनेस अच्छे से नहीं चला, बहुत फॉल्स पॉजिटिव्स आ गए, तो फिर वो डिप्रेशन वाली जो चीज़ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट वाली चीज़ है, तो व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम कि भाई आपका बिजनेस नहीं चल रहा और आपको अपना बिजनेस विड्रॉ करना चाहिए? जैसे ही पैसे खत्म हो जाए बंद कर देना। तब तक ट्राई करते रहो यार। एक अगर बहुत पैसे हैं माँ बाप के पास, इन्वेस्टर्स के पास, तो लगे रहो, ट्राई करते रहो कुछ और। लेकिन जब पैसे खत्म हो जाए तो ऑप्शन नहीं होता। सेकंड क्या होता है ना, आपको खुद ही पता लग जाता है कि यार मार्केट में नहीं मूव कर रहा। आप एक ही चीज के पीछे थोड़ी लगे रहोगे कि चलता रहेगा चलता रहेगा, मतलब दीवार पे सर मार लो कि भाई चल चल, नहीं होगा। तो एक टाइम के बाद आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कंज्यूमर को आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो मूव करने का टाइम आ गया है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर कुछ नहीं चल रहा, टेंशन मत लो, अगली चीज चल जाएगी। बट ट्राई, मतलब नई चीज ट्राई करते रहो। वो वाली चीज नहीं चल रही, उससे आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है, लोग पागल हो जाते हैं कि एक ही चीज के पीछे चल जाते हैं कि मैं चला के ही रहूंगा। एक पिक्चर आई थी विल स्मिथ की, परसूट ऑफ हैप्पीनेस, राइट? देखिए आप लोगों ने, उसमें वो एक मशीन बेचता था और वो मशीन के पीछे पड़ा रहा कि मैं मशीन बेचूंगा बेचूंगा बेचूंगा। घर बिक गया, बीवी छोड़ गई, लेकिन वो मशीन बेचने में लगा हुआ था। फाइनली उसकी नहीं बिकी ना मशीन। तो मैं कह रहा हूँ कि बस कीप ट्राइंग, बट यू नीड टू नो व्हेन योर प्रोडक्ट market fit is not happening, or there is something wrong in how you are marketing it, or maybe the consumer perception is different, or maybe competition is better than you. That is something which you need to always keep in your mind before taking that decision to switch off. Thank you so much everybody. It was a great session, and all the best Amit ji, all the best to the team, and this is outstanding Startup Festival 2.0 which you guys have started. And please invite me for the third one also. Thank you so much, everyone.